CNN TV کے ساتھ میں ہوں کوکب فاروقی۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پہلی حکومت ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ برطانوی شاہی جوڑا دورہ پاکستان مکمل کر کے اپنے وطن روانہ۔ ہوم گراؤنڈ میں پیپلز پارٹی کو دوسری بار شکست۔ فضل الرحمان کے مارچ کی قیادت پارٹی صدر شہباز شریف ہی کریں گے، رانا ثناء اللہ۔ موجودہ سیاسی بحران کو مفاہمت سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چودھری شجاعت۔ فائر فائٹرز کی کام چھوڑ ہڑتال جاری۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا بڑا فیصلہ، سرفراز احمد کو تینوں فارمیٹ میں کپتانی سے ہٹا دیا۔ کینیڈا میں اقلیتی حکومت بنانے کے لیے چھوٹی جماعتیں اہم۔ کینیڈا میں وفاقی انتخابات، کنزرویٹو اور لبرلز کے درمیان کڑا مقابلہ۔ ٹرمپ ٹروڈو کے مقابلے میں زیادہ معزز۔ ٹروڈو کو شاید مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے، ڈاگ فورڈ۔ امریکہ کے ساتھ معاہدہ، ترکی نے شام میں 120 گھنٹے کے لیے جنگ بند کر دی۔ یورپی کونسل نے برطانیہ کی یورپ سے علیحدگی کی توثیق کر دی۔ فیس بک کا تمام سیاسی اشتہارات بند نہ کرنے کا فیصلہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے، وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مدینے کی ریاست پہلے دن ہی نہیں بن گئی تھی، آہستہ آہستہ تبدیلی لے کر آ رہے ہیں۔ مدینے کے لوگوں نے اپنے کردار کو بدلا، پاکستانی قوم بہت جلد ایک عظیم قوم بنے گی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کامیاب جوان پروگرام کا افتتاح کر دیا، جس کے تحت نوجوانوں کو 10,000 روپے سے 50 لاکھ تک قرض مل سکے گا۔ نوجوانوں کو کاروبار، اعلیٰ تعلیم، ہنر کے مواقع دیے جائیں گے۔ نوجوان گھر بیٹھے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں کامیاب جوان پروگرام کی افتتاحی تقریب ہوئی، جس سے وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کامیاب جوان پروگرام پر عثمان ڈار اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ کامیاب جوان پروگرام کی سب سے اہم چیز میرٹ ہے۔ پروگرام کا پہلا فیز شروع کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مدینے کی ریاست پہلے دن ہی نہیں بن گئی تھی، آہستہ آہستہ تبدیلی لے کر آ رہے ہیں۔ مدینے کے لوگوں نے اپنے کردار کو بدلا، پاکستانی قوم بہت جلد ایک عظیم قوم بنے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا سچائی کی طاقت نہ بھولیں، سچے انسان کی قدر ہوتی ہے۔ تاجروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس نہیں دینا، ہمیں ذہن بدلنا ہوگا۔ بھیک مانگ کر خوددار قوم نہیں بنتی، ٹیکس نہیں دیں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم فضل الرحمان کے لوگوں کو بھی قرض دے دیں گے اگر وہ میرٹ پر آ گئے۔ مجھے پتا ہے کہ پہلی اسمبلی ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نوجوان ہیں جو بہت بڑی طاقت ہیں، ملک بھر میں 10 لاکھ نوجوانوں کو قرضے دیں گے۔ 100 ارب روپے کے قرضے رکھے ہیں، یہ نوجوانوں کے لیے ہیں، اور جس میں سے 25 ارب صرف خواتین کے لیے اسپیسیفکلی ہوں گے۔ 1 لاکھ تک قرضہ دیا جائے گا سود کے بغیر۔ 45 ڈسٹرکٹ میں جو سب سے کمزور طبقے ہوں گے ان کے لیے قرضے دیے جائیں گے۔ کنسیشن پہ قرضے دیے جائیں گے، وہ 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک ہوں گے، اور جو تیسرا ٹیئر ہے وہاں 5 لاکھ سے 50 لاکھ تک قرضے دیے جائیں گے، اور یہ سب میرٹ کے اوپر ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ یہ تحریک انصاف کا نوجوان ہے اس کو قرضے دے دو، ساروں کو ہم نے دینا ہے میرٹ کے اوپر۔ ہمارے پاس یوتھ ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے ہمارے پاس، ان کو ہنر سکھانے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ 10 ارب روپیہ ہم سکل ایجوکیشن کے اوپر خرچ کریں گے۔ 1 لاکھ نوجوانوں کو ٹیکنالوجی سکھائیں گے، 25,000 کو ہم انڈسٹری کے ساتھ نوجوانوں کو لگا دیں گے تاکہ وہ ہنر سیکھیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے
अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे शाही जोड़े के दौरे पाकिस्तान के हवाले से। शाही जोड़ा जो है दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन के लिए वापस रवाना हो गया है। शाही जोड़े ने लाहौर, इस्लामाबाद, चित्राल का दौरा किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शाही जोड़ा 5 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके बरतानिया रवाना हो गया। तफसीलात के मुताबिक शाही जोड़ा शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन अपना दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके बरतानिया रवाना हो गए। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया। शाही जोड़े का कहना है कि पाकिस्तान से मोहब्बतें समेट कर जा रहे हैं। शहजादे विलियम ने कहा कि पाकिस्तान से मिलने वाली मोहब्बत कभी नहीं भूलेंगे। शाही जोड़े ने हाथ हिलाकर सबको अलविदा किया। शाही जोड़े ने अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया। इसके अलावा वजीर आज़म इमरान खान और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से भी मुलाकातें की। इस दौरे के दौरान शहजादी केट मिडल्टन के लिबास के भी काफी चर्चे रहे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रात बरतानवी शाही जोड़ा शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन अपना दौरा लाहौर मुकम्मल करके वापस इस्लामाबाद रवाना हुए थे, लेकिन इस्लामाबाद का मौसम खराब होने के बाइस उनके तैयारे को वापस लाहौर आना पड़ा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने शाही जोड़े के जहाज को मौसम खराब होने के बाइस दोबारा उड़ान की इजाजत ना दी, जबकि शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन अपने खुसूसी तैयारे में काफी देर तक मौजूद रहे। बताया गया कि शाही जोड़े को शेड्यूल के मुताबिक शाम 5:30 बजे इस्लामाबाद पहुँचना था। ताहम इस्लामाबाद में मौसम की खराबी के बाइस लाहौर से परवाज की इजाजत ताखीर से मिली। बाद अज़ा सिविल एविएशन हुक्काम ने बताया कि इस्लामाबाद का मौसम ज्यादा खराब होने के बाइस बरतानवी शाही जोड़े के को इस्लामाबाद से वापस लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करवा दिया गया। इस मौके पर लाहौर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात कर दिए गए, जबकि शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन के लिए VIP लाउंज भी ओपन कर दिया गया। वाज़ेह है बरतानवी शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन ने दौरा लाहौर में SOS विलेज का दौरा किया। शाही जोड़े ने 3 यतीम बच्चों के हमरा उनकी सालगिरह का केक भी काटा। बरतानवी शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन का SOS विलेज आमद पर विलेज में क़याम पजीर बच्चों समेत दीगर ने पुरजोश इस्तकबाल किया। शाही जोड़ा बच्चों में घुल मिल गया और उनसे बातचीत की। शाही जोड़े ने बच्चों के साथ 1 घंटे से जायद का वक्त गुजारा। बरतानवी शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन ने इस मौके पर SOS विलेज के 3 बच्चों की सालगिरह की तकरीब में भी शिरकत की और केक काटा। शहजादी केट मिडल्टन ने सालगिरह मनाने वाले बच्चों को केक पेश किया। इस मौके पर शाही जोड़े को SOS विलेज में बच्चों को फराहम की जाने वाली सहूलियात से आगाही दी गई। शाही जोड़े ने बच्चों के साथ तस्वीर भी बनवाई। बाद अज़ा शाही जोड़े ने शौकत खानम कैंसर अस्पताल का भी दौरा किया। ताज़ा तरीन TV प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। सिंध असेंबली के हल्का PS11 लड़काना 2 में पीपल्स पार्टी का जादू काम न आया और ना ही बिलावल भुट्टो जरदारी की 5 रोजा इंतखाबी मुहिम सीट दिलवा सकी। GDA के उम्मीदवार मौज़म अली अब्बासी ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील सुमरो को 5,556 वोटों से शिकस्त दे दी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। डेमोक्रेटिक अलायंस GDA ने पीपल्स पार्टी को होम ग्राउंड में दूसरी बार शिकस्त दे दी। सिंध असेंबली के हल्का PS11 लड़काना 2 में पीपल्स पार्टी का जादू काम न आया और ना ही बिलावल भुट्टो जरदारी की 5 रोजा इंतखाबी मुहिम सीट दिलवा सकी। GDA के उम्मीदवार मौज़म अली अब्बासी ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील सुमरो को 5,556 वोट से शिकस्त दे दी। ख्याल रहे कि GDA के मौज़म अली अब्बासी की जानिब से असासे छुपाने पर PS11 लड़काना 2 की सीट खाली हुई थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने PS11 के इंतखाबी नताइज में धांधली का इल्जाम आयद करते हुए नताइज चैलेंज करने का ऐलान कर दिया और कहा कि हम दोबारा इलेक्शन करा के अपनी इंतखाबी नशिस्त वापस लेंगे। अपने बयान में बिलावल ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हमारे पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया गया, पोलिंग का अमल जानबूझकर सुस्त कर दिया गया और दौरान पोलिंग हमारी खवातीन वोटर्स को हरासा किया गया, जबकि खवातीन को GDA को वोट देने के लिए धमकियां दी गई। चेयरमैन PP ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी अपील का नोटिस नहीं लिया, इलेक्शन कमीशन को बताया मगर उसने खामोशी में बदनीयती का इरादा वाज़ेह किया था।
हम धांधली को हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबी नतीजे को चैलेंज करते हुए कहा कि हकीकत को छुपाया नहीं जा सकता। हम इस सिलेक्शन को बेनकाब करेंगे। हम दोबारा इलेक्शन में अपनी नशिस्त वापस लेंगे। हमने सियासी इंजीनियरिंग के बावजूद मुखालिफ इत्तेहाद के वोटों की बढ़तरी कम कर दी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज़ादी मार्च का फैसला अटल है, इस पर सबको अमल करना है और शहबाज शरीफ आज़ादी मार्च की क़यादत करेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के मार्च की क़यादत पार्टी सदर शहबाज शरीफ ही करेंगे। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज़ादी मार्च का फैसला अटल है, इस पर सबको अमल करना है और शहबाज शरीफ आज़ादी मार्च की क़यादत करेंगे। तमाम अजला से नून लीग के वर्कर्स आज़ादी मार्च में शरीक होंगे। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा इंतकाम का निशाना शहबाज शरीफ को बनाया गया। पार्टी की तंजीम नौ का काम मुकम्मल कर लिया गया है। लीगी रहनुमा का कहना था कि सरमायाकार आज कारोबार और यूनिट बंद करके भाग रहे हैं और तमाम फैक्ट्रियां मुल्क से बाहर जा रही हैं। वाज़ेह रहे कि इंसदाद मुनशियात की खुसूसी अदालत में राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस की समाअत हुई। इंसदाद मुनशियात की खुसूसी अदालत ने मेंबर कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में 2 नवंबर तक तौसीक कर दी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। चौधरी शुजात का कहना था कि जो लोग पाकिस्तान की तारीख से लाइल्म हैं उन्हें चाहिए कि तारीख का इल्म हासिल करें और देखें पहले कौन क्या था और अब क्या है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मौजूदा सियासी बहरान को संजीदगी और अफवाम तफहीम से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। बाज़ लीडर और साहब इक़्तिदार लोग समझते हैं कि पाकिस्तान को बने सिर्फ 5-6 साल हुए हैं। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियाँ साकिब निसार, मियाँ मंजूर वट्टो, अहमद शुजा वट्टो और फैसल सोले हयात ने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की और मौजूदा सियासी बहरान के हल में अपना किरदार अदा करने का मशवरा दिया। चौधरी शुजात का कहना था कि जो लोग पाकिस्तान की तारीख से लाइल्म हैं उन्हें चाहिए कि तारीख का इल्म हासिल करें और देखें पहले कौन क्या था और अब क्या है। उन्होंने कहा कि बाज़ सियासी लीडरों को ये भी मालूम नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान और हासिल बजिंजो के वालिद का नाम क्या है। ऐसे लोग क्या मुज़ाकरात करेंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। फायर फाइटर्स की जानिब से कराची के तमाम स्टेशन पर मुत्तफिका फैसले के तहत काम छोड़ हड़ताल की जा रही है। मुलाजमीन का कहना है कि फायर फाइटर्स अब किसी भी हादसे की सूरत में स्टेशन से फायर टेंडर्स नहीं निकालेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची की शार फैसल पर एक कंपनी के दफ्तर में आग लग गई। तहम फायर ब्रिगेड का अमला हड़ताल पर होने के बायस आग बुझाने नहीं पहुंचा है। जराये के मुताबिक कराची के इलाके PCSH ब्लॉक 6 मोहम्मद अली सोसाइटी में वाक़ एक निजी कंपनी में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। शहर में फायर ब्रिगेड की जारी हड़ताल के बायस अमला बुलाए जाने पर भी रेस्क्यू के लिए नहीं पहुंचा है। जराये के मुताबिक आग बुझाने के अमल में पाक बहरिया के 2 फायर टेंडर्स हिस्सा ले रहे हैं, जबकि इलाके और इमारत में मौजूद लोग भी अपनी मदद के तहत आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। कराची भर के फायर फाइटर्स की जानिब से काम छोड़ हड़ताल की जा रही है, जिसके बायस अवाम की जानो माल को खतरा लाहक हो गया है। फायर फाइटर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक फायर ब्रिगेड मुलाजमीन ने काम करने से इनकार कर दिया है। फायर फाइटर्स की जानिब से कराची के तमाम स्टेशन पर मुत्तफिका फैसले के तहत काम छोड़ हड़ताल की जा रही है। मुलाजमीन का कहना है फायर फाइटर्स अब भी किसी हादसे की सूरत में स्टेशन से फायर टेंडर्स नहीं निकालेंगे। मुलाजमीन का मौक़िफ़ है कि फायर एक्स अलाउंस
अलाउंस दिया जा रहा, तनख्वाहों की अदायगी भी ताखीर का शिकार है और उन मुतालबात के हल न होने तक स्टेशन से फायर टेंडर्स नहीं निकालेंगे। फायर फाइटर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मुलाजमीन का ये भी कहना है कि 1 माह से तनख्वाहों की अदायगी भी नहीं की जा रही और 3 माह से तनख्वाह में होने वाला इजाफा भी नहीं मिला। फायर फाइटर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की मरकजी कमेटी के रुकन मोहम्मद अरशद का कहना था कि गुज़िश्ता 17 माह से फायर रिक्स अलाउंस नहीं मिला। उस वक्त तक काम शुरू नहीं करेंगे जब तक फायर रिक्स अलाउंस नहीं मिलता। ताहम जहां इंसानी जान का मामला होगा वहां सूरत हाल देखकर कमेटी फैसला करेगी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरफराज अहमद को क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कप्तानी से हटा दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरफराज अहमद को क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कप्तानी से हटा दिया, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अजहर अली को पाकिस्तान का कप्तान बनाने का फैसला किया गया है। जल्द ही नए कप्तान का ऐलान कर दिया जाएगा। सरफराज अहमद के साथ कौमी टीम को नंबर 1 बनाने के बायस नरम रवैया इख्तियार किया जा रहा है। याद रहे कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में T20 वर्ल्ड रैंकिंग में पहले नंबर पर मौजूद पाकिस्तानी टीम को क्लीन स्विप का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद सरफराज को बहुत ज्यादा तनकीद का भी सामना करना पड़ा। जबकि कप्तानी से हटाने की खाली यही वजह नहीं बल्कि वर्ल्ड कप में भी टीम की नाकिस कारकर्दगी के बायस मैनेजमेंट में तब्दीली की गई और सरफराज को भी काफी तनकीद का सामना करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें मजीद मौका देने का फैसला किया। ताहम अब कप्तान को हटाने का भी फैसला कर लिया गया है। कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद का कप्तानी से हटाए जाने पर मौक़िफ़ भी सामने आ गया। कौमी टीम के साबिक कप्तान ने कहा है कि पाकिस्तान की क़यादत एजाज़ की बात थी। अजहर अली और बाबर आजम के लिए दुआगो हूँ। सरफराज अहमद ने कहा कि कोचेज और पूरे सफर में साथ देने वाले खिलाड़ियों का शुक्रगुजार हूँ। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद।